नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादिशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Everyone loudly. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinath Madana Mohana Jaya Radhe Jaya Krishna Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavana Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavana Kesi Ghat Vamsi Bata Dwadasha Kanana Jasabai Koilo Shri Nandanandana Kesi Ghat Vanshi Vata Dwadasha Kanana Jaha Sarva Leela Koilo Shri Nandanandana Shri Nanda Jashoda Jaya Jaya Gopagana Shri Damadi Jaya Jaya Venu Vasagana Shri Nanda Jashoda Jaya Jaya Gopagana Shri Damadi Jaya Jaya Venu Vatsagana Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtida Sundari Jaya Paunamasi
जय अभिरानगारी जय विश्वभानो जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिननगारी जय जय गोपेश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा बचु द्विज राजा जय जय गोपेश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा बट द्विज राज जय राम घट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बसी बत जाना जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जट जन जय द्विज पत्नी जय नागकन्यगाना भक्ति तेज हरा पायला गोविंद चरना जय द्विज पत्नी जय नागकन्यगाना भक्ति तेज हरा पाइलो गोविंद चरण शिरस मंडल जय जय राधश्यामा जय जय रासलीला सर्वमनोरमा नीरास मंडल जय जय राधश्यामा जय जय रास लीला सर्वमनोरमा जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सारा परकीय भावे जा व्रजते प्रकारा जय जय ज्वल रस Everyone loudly. रस सारा परकीय भावे जा व्रजते प्रचार श्री जानवपादः पद्मा कुर्या स्मरणा दीना कृष्णदासे कोहे नाम संकीर्तना जानवपाद पद्मा कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोए नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Once more. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, everyone loudly. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. everyone together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hari Bol. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Together. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री हरिनाम संकीर्तन की समवेत गौ भक्तवृंद की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय शिष्य गौर निताय की जय ज्ञानतिमिरन्दस्य
ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो आप सभी का इस आने वाले जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस कृष्णा स्मरणम सीरीज के अंदर स्वागत है, जहाँ हम आज से भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद से अलग अलग कहानियों पर या तथ्यों पे चर्चा करेंगे। आज का जो विषय हमने चयन किया है वो है भगवान श्री कृष्ण का आगमन, अराइवल, जयंती, अपीयरेंस डे, आविर्भाव दिवस इत्यादि जो भी कहा गया है। इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको महर्षि शांडिल्य के द्वारा एक बहुत खूबसूरत बात बताई गई है वायु पुराण में उससे चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। सो महर्षि शांडिल्य अपने एक प्रवचन या कथा के समय ये वायु पुराण में जो उल्लेख आता है, एक कहानी का उल्लेख करते हैं जो कहानी जुड़ी हुई है जन्माष्टमी के पावन दिवस से। एक ब्राह्मण के 2 पुत्र थे, सुवित्रा और वृत्ता, समथिंग लाइक दैट। दे वर हाईली लर्नेड और काफी अच्छे संस्कार उनके माता पिता के द्वारा उन बच्चों को दिया गया था। और वह दोनों अपने गांव से निकलते हैं प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस में स्नान करने के लिए माघ के मास में, जो जनवरी फरवरी का समय आता है, जो बहुत उसको अद्भुत माना गया है। ये चलना शुरू करते हैं, मतलब उस समय का उनका उपलक्ष्य था कि उस समय जाके वहां रुकेंगे, पर अब से करीबन 1 महीने पहले अपने घर से निकलते हैं। जिस दिन ये प्रयागराज में प्रवेश करते हैं तो उनको पता चलता है वह जन्माष्टमी का दिवस है। तो दोनों बड़े उत्साहित होते हैं। और आपको पता होगा प्रयागराज, इस बार हमारे संग कौन कौन गया था प्रयागराज काशी यात्रा में? हाथ खड़ा करिए। अयोध्या इत्यादि जगह। तो याद होगा हम प्रयागराज में आपको वेणु माधव के दर्शन के लिए गए थे। तो बहुत प्राचीन मंदिर है। तो ये दोनों ब्राह्मण पुत्र उस मंदिर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि जन्माष्टमी का समारोह है। आज वहां पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रहेगा। जैसे हम जानते हैं जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जिस दिन आविर्भाव या जिस दिन वो प्रकट हुए थे, तो इंद्रदेव की कृपा के कारण बहुत तेज बारिश हुई थी। तो जैसे वो प्रयागराज में पहुंचते हैं उन्हें एहसास होता है कि आज जन्माष्टमी का दिवस है। बहुत तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी आता है, बहुत हालत खराब हो जाती है। तो दोनों भाइयों को सड़क पे कुछ नजर में नहीं आता, पूरा अंधेरा हो चुका है। तो जो इसमें वरिष्ठ भाई था सुवित्रा, वो थोड़ा निराश हो जाता है, वो थोड़ा थक जाता है। वो सोचता है कि अभी आगे जाने का फायदा नहीं है, अब आज हम किसी चीज का सहारा, किसी घर की शरण लेकर हम रुक जाते हैं। हम वरना कुछ समय के बाद या कल अगले दिन जाएंगे, जिसको आनंदोत्सव कहा गया है। पर जो छोटा भाई होता है वो रुकने को तैयार नहीं होता है। दोनों भाई फिर भी खोजते हैं कोई शरण मिले। तो वहां पे उनको मिलता है एक वैश्य घर। वहां कोई भी नहीं था, जंगल में दूर दूर तक कुछ नहीं था, गांव में कुछ नहीं था। तो वहां पे एक रास्ते में एक वैश्य का घर मिलता है। तो जो बड़ा भाई था बहुत थक चुका था, तो कहता है अपने छोटे भाई से अभी जाने का फायदा नहीं है, बहुत अंधेरा है, आंधी तूफान है, तो हम यहीं रुक जाते हैं। पर छोटा भाई कहता है नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, ये अच्छी जगह नहीं है,
और उस आंधी तूफान में उसका सामना करते हुए वह बेनू माधव के मंदिर की तरफ चलता चला जाता है। उसको ये भी नहीं पता रास्ता सही है गलत है। इस प्रकार से शांडिल्य मुनि इस चीज का उल्लेख करते हैं। करने के बाद कुछ समय के उपरांत जो छोटा भाई होता है वृत्ति, वो अंत में जाकर बेनू माधव के मंदिर में पहुंच जाता है। वो वहां मंदिर में पहुंचता है, उसका बड़ा भाई उस वैश्य के घर पे रुका हुआ है और यहाँ छोटा भाई बेनू माधव के मंदिर में पहुंच गया है। वहां बहुत खूबसूरत अभिषेक हो रहा है, कीर्तन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है। पर जब छोटा भाई वहां पहुंचता है, उसके मन में ये विचार चल रहा है, अरे शायद मुझसे गलती हो गई। मेरा बड़ा भाई अभी वैश्य घर में है, उसको कितना आनंद वहां औरतों का नृत्य देखने को मिल रहा होगा, औरतों का संग मिल रहा होगा। वह अभिषेक में भाग ले रहा है, परंतु उसका मन उस वैश्य घर में है। वो कीर्तन में गा रहा है, कीर्तन में भाग ले रहा है, नाच रहा है, उसका मन उस वैश्य के घर पे है। वो प्रवचन सुन रहा है, कानों में शब्द जा रहे हैं, परंतु उसका मन उस वैश्य के घर में है। और वो ये सोच रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे भाई का निर्णय सही था, मुझे उस वैश्य के घर पे रुक जाना चाहिए था, आज मेरी रात भी एक प्रकार से रंगीन हो जाती। इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से छोटा भाई भगवान के दर्शन ले भी रहा है, परंतु उसका मन कहीं और खोया हुआ है। और इस प्रकार से दुख मना रहा है कि मुझसे गलती हो गई भगवान के घर आकर। यहाँ पर शांडिल्य जी वह बड़े भाई की इस मन की स्थिति का उल्लेख करते हैं। इस तरफ बड़ा भाई सोच रहा है कि देखो मैं कितना आलसी निकला, मेरा छोटा भाई कितना उसके अंदर दृढ़ भावना थी कि भगवान का दर्शन लेने के लिए वो आंधी तूफान में भी चला गया, और देखो मैं आलस के कारण इस वैश्य घर में बैठा हूं जो इतना अब अपवित्र स्थान है। सोचिए मेरे छोटे भाई की आंखें भगवान के सौंदर्य का दर्शन ले रही होंगी, उसके काने भगवान के कीर्तन और भगवान के प्रवचन के बारे में सुन रहे होंगे, वह अपने नाक के माध्यम से भगवान को अर्पण करे हुए फलों का सुगंध ले रहा होगा, इत्यादि इत्यादि जिह्वा के माध्यम से भगवान के प्रसादम को ग्रहण कर रहा होगा। देखिए मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन में आज तो कुछ भी पुण्य नहीं करा है जिसके कारणवश आज मैं ऐसी स्थिति में अटक गया हूँ। देखिए वो कितना सौभाग्यशाली है, देखिए मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। इस प्रकार से दोनों भाई रो रहे हैं। एक ये सोच के रो रहा है कि मेरा छोटा भाई मंदिर में किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा होगा, और यहाँ पर वह छोटा भाई जो मंदिर में है बड़ी भाई के बारे में सोच के दुख मना रहा है कि देखिए मैं तो गलत फंस गया, मेरा भाई वहां पर किस प्रकार से औरतों के नृत्यों का आनंद उठा रहा होगा। कोई बात नहीं, इस प्रकार से दोनों के व्हाट यू से लेमेंटेशन हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ शोक, इस प्रकार से शोक बनाते हुए दोनों की रात निकल जाती है और सुबह होती है। सुबह होती है, बादल हट जाते हैं, सब साफ सला, इट्स अ गुड वेदर नाउ, एंड बोथ ऑफ देम बिगिन टू वॉक। जैसे ही चलते चलते एक जगह रास्ते में पहुंचते हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। और फिर शांडिल्य मुनि कहते हैं कि एकदम से बारिश का बादल दोबारा आ जाता है और उसी समय बिजली कड़कती है, और वह बिजली आकर दोनों भाइयों के ऊपर गिर जाती है और दोनों भाइयों की वहीं पे उस समय मृत्यु हो जाती है। और अब मृत्यु के पश्चात की कहानी, और अब दोनों भाइयों को लेने के लिए 2 विष्णुदूत और 3 यमदूत आते हैं। और यहाँ पे यमदूत जो हैं वो छोटे भाई को पकड़ते हैं जो मंदिर में रो रहा था कि मेरे से गलती हो गई, मंदिर में आके मुझे वैश्य के घर में होना था। और जो विष्णुदूत हैं, जो 2 विष्णुदूत आए थे, वो पकड़ते हैं बड़े भाई को जो वैश्य के घर पे रुका था। तो जब उसको पकड़ते हैं विष्णुदूत, या उसको कहते हैं कि चलिए आपको विष्णु के धाम लेके जाना है, तो वो बड़ा हैरान हो जाता है। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं बड़ा भाई वह विष्णुदूत से कहता है, हे प्रभुगण ये कैसा, ये इस सृष्टि का नियम है या किस प्रकार से यह न्याय है, मैं जो एक वैश्या के घर में मैंने रात्रि बिताई, उस जैसे पापी को आप भगवान के पास लेके जा रहे हो। मेरा छोटा भाई देखिए जिसने भगवान विष्णु के घर में, बेनी माधव के घर में रात्रि बिताई, तपस्या करी, भगवान का दर्शन किया, उसको यमदूत लेकर जा रहे हैं। तो उस समय विष्णु दूत बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, शायद नजर नहीं आएगा, मैं आपको फिर भी संस्कृत समझा देता हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स एंड आई थॉट इस कृष्णा स्मरणम सीरीज के लिए इस वाक्य से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं,
हमारे घर वाले पूजा पाठ करते हैं, इत्यादि इत्यादि करते हैं, पर उनमें कोई परिवर्तन या कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। हमारे समाज में औरतें ना जाने कितने व्रत या पिताश्री ना जाने क्या क्या करते आए हैं, पर व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के सदाचार में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। या विष्णु दूता बहुत खूबसूरत बात कहते हैं शृणु धर्म रहस्यम। I'll go with Sanskrit word to word, I'll tell you. शृणु धर्म रहस्यम, सुनिए, मैं आपको धर्म का एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूं। शृणु धर्म रहस्यम त्वम, unto you, आपको, विचित्रम रोमहर्षणम, जो कि बहुत विचित्र है। आज मैं आपके सामने एक धर्म का एक रहस्य प्रकट करने वाला हूं। कर्मणां कृति मात्रम तू न ददाति फलम महत्। कहने का तात्पर्य है कर्मणाम कृति मात्रम, केवल कर्म करने के मात्र से, तू ना ददाती फलम महत, केवल कोई अगर कर्म करता है, चाहे भगवान को फूल अर्पण करे, चाहे भगवान को आरती अर्पण करे, चाहे भगवान को अभिषेक करे, केवल कर्म करने माध्यम से फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि छोटे भाई ने वही किया, उसने अभिषेक करा, भगवान को फूल अर्पण करे, भगवान की आरती में भाग लिया, कीर्तन भाग लिया, तो यहां कहते हैं विष्णुदूत केवल कर्म करने के माध्यम से फल की प्राप्ति नहीं होती। सर्वेषाम अपि कर्माणम मनः शुद्ध ही कारणम। सर्वेषाम अपि कर्माणम, सभी कर्मों का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? मनः शुद्धिर ही कारणम, जिसके माध्यम से आपका मन शुद्ध हो। आप कुछ भी करते हैं, अगर उस कार्य के माध्यम से अगर आपका मन शुद्ध नहीं हो रहा है, तो आपके द्वारा करे हुए सर्व कर्म का फल निवेश इज यूजलेस, फ्यूटाइल। और फिर कहते हैं मनसा चंचलेनैवा कृतम कर्माचा दुःखदम। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परंतु उस समय मन चंचल है, मन भटक रहा है, तो फल कैसे मिलेगा? कृतम कर्मा च दुःखदम, आपको ऐसे कार्य से सिर्फ दुख की ही प्राप्ति होगी। करने को बाह्य रूप से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, परंतु आपका मन भटक रहा है, मन विचलित है, आपको ऐसे कर्म से सिर्फ दुख ही प्राप्त होगा। मनसा चिंतितो वापि धर्मा फला विवर्धना। फला विवर्धना, आपको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होगी। मनसा चिंतितो वा अपि धर्मः, अगर आपने मन को दृढ़ निश्चय करके अगर एक स्थान पर जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान देकर अगर आप कर्म करते हैं, फला विवर्धना, आपको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होगी। तो क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका छोटा भाई बाह्य रूप से तो भगवान के कीर्तन, भगवान की सेवा में भाग ले रहा था, पर मन उसका भगवान की सेवा में नहीं था। मन कहाँ लगा हुआ था? उसका मन उस वैश्य घर में, उस वैश्य के बारे में सोचने में लगा था। परंतु आप बाहरी रूप से, he didn't do anything, he just stayed back at the house of the prostitute, उसने कुछ करा नहीं था। He said, but you, within your mind, you were thinking about मंदिर में क्या हो रहा था, कैसे कीर्तन चल रहा होगा, कैसे प्रवचन चल रहा होगा, परंतु आपका मन भगवान में लगा हुआ था, इसलिए आपको ये सफलता प्राप्त हुई है। ये निर्धारित नहीं होता कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, परंतु आपका मन कहाँ था और किस में था। तो फिर शांडिल्य मुनि इस कहानी का निष्कर्ष निकालते हुए 5 शिक्षाएं देते हैं। 5 श्लोक हैं, मैं संस्कृत में नहीं जाऊंगा, आई जस्ट पुट द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस। वो क्या कहते हैं? जब भी हम अध्यात्म जीवन का पालन करें तो उसमें मन का शुद्ध होना सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम माना गया है। अगर उस प्रकार से हम कार्य करते हैं, उस लक्ष्य से कार्य करते हैं, सोचिए भगवान की सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते आप दोष निकाल रहे हैं। आज मैं इसी के बारे में आगे चर्चा करूंगा, इसी कहानी से आगे जोड़ते हुए। तो सबसे पहली चीज शांडिल्य मुनि कहते हैं, देखिए जितने भी वैदिक प्रैक्टिसेस होते हैं, कर्म होते हैं, रिचुअल होते हैं, वह सब उनका लक्ष्य होता है आपके मन को शुद्ध करना, और साथ ही साथ उसकी सफलता निर्भर करती है कि आपका मन कितना शुद्ध है। अगर उस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप चैरिटी करें, ऑस्टेरिटी करें, तपस्या करें, दान करें, शास्त्र का अध्ययन करें या यज्ञ करें, अगर जब तक ये शुद्ध मन के द्वारा ना किया जाए उसका फल प्राप्त नहीं होता।
दूसरी चीज कहते हैं दूसरे श्लोक में, योग का जो नियम है, प्रिंसिपल है, जो एक माध्यम है भगवत धाम में भक्ति प्राप्त करने का, वह है सबसे पहले मन को नियंत्रण करना और मन को शुद्ध करना। विदाउट कॉन्करिंग द माइंड, परफेक्शन इन योगा कैन नॉट बी अचीव्ड। इन अदर वर्ड्स वो कहते हैं, देखिए आप कृत तो कर रहे हैं, परंतु आपका मन आज भी भटक रहा है। यू नीड टू पॉज एंड यू नीड टू टेक गाइडेंस। कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है, जिसके कारण आप योग साधन का पालन कर रहे हैं, फिर भी आपको उस साधना से वह फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब प्रश्न बनता है कि इस प्रकार इस शुद्ध मन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए वे 3-4 चीजें कहते हैं शांडिल्य मुनि। सबसे पहले, सो अगेन व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेट हियर। अब से 1 महीने के बाद जन्माष्टमी का दिवस है। ये कृष्णा स्मरणम कार्यक्रम हमने इसलिए शुरुआत करा है कि हम अपनी चेतना का या चेतना को विकसित कर सकें। जन्माष्टमी का दिवस है, मनो महोत्सव कहा गया है भागवतम में। हम उस प्रकार उससे उत्साहित हो जाने चाहिए कि आज से ही उस 16 अगस्त के दिवस के लिए सोच सोच के हमारे मन में एक प्रकार से उत्सव, महा उत्सव की तैयारी हो रही हो। तो उसके लिए हम आज इन सब चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। तो किस प्रकार से शुद्ध मन की शुरुआत होती है, करा जाता है। सबसे पहले श्रद्धापूर्ण रूप से शास्त्र का अध्ययन करना। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दे सकता हूँ। अगर आपको सही में 16 अगस्त आने वाले जन्माष्टमी का एक एक्सपीरियंस पैदा करना है, यू रियली वांट टू हैव रेसिप्रोकेशन विद द लॉर्ड, हमें अभी से चेतना को तैयार करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट थिंग, जैसे पहली चीज कही गई है, अगर आप सभी के पास कृष्णा नाम की जो किताब है शिला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई, आप डेली उसका एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आई विल टेल यू, 16 छोड़िए, 15 तारीख से ही आप उत्साहित होंगे। आप 15 तारीख से ही नाच रहे होंगे 16 तारीख को सोचकर, परंतु आप 16 तारीख को सुबह उठे, शनिवार को थके हारे, फिर सोचा चलो चले जाते हैं मंदिर में, भगवान को मुंह दिखा लाते हैं। अगर ऐसी मनोस्थिति से आप भगवान के मंदिर जाएंगे, इतने स्पेशल ओकेजन का हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। कितना स्पेशल है, आई टेल यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। अप्रामाणिक गुरु से सलाह मशवरा, अगर साधना का पालन करते हुए भी हमें प्रगति का एहसास नहीं हो रहा है, तो शांडिल्य मुनि सेज आस्क, टेक गाइडेंस। तीसरा, अच्छे कृत करें। तो आपने देखा होगा जब भी कोई पावन अवसर होता है तो तपस्या का एक नियम बताया गया है। तपस्या किससे? उस प्रकार से ताकि हम अपने शरीर पर कम ध्यान दें और अध्यात्म जीवन पर अधिक से अधिक ध्यान दें। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग टू डू टू मच तपस्या, बट एक तपस्या तो आप कर ही सकते हैं। प्रातःकालीन में उठकर कुछ नाम, भगवान के नाम जाप करें। हमारा डेली सुबह 4:30 बजे कार्यक्रम रहता है, आप लोग जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन रहता है। उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक ऑनलाइन जपा सेशन रहता है। 7:45 एवरी डे देयर इज अ मॉर्निंग भागवतम क्लास। एंड आप सब अगर चाहें तो कृष्ण बुक का अध्ययन करिए, उससे बहुत चेतना का असर पड़ेगा। रेंडल सर्विस, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट, आप 16 तारीख की जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ सेवा के लिए आप वॉलंटियर कर सकते हैं। आई बिलीव हमारे होस्ट ने उसका फॉर्म शेयर करा होगा। These are all शास्त्रिक things which we are trying for you to facilitate and cultivate. सब गुरु with devotion and faith, सेवा का एक बहुत बहुत महत्व माना गया है। प्रैक्टिस सेंस कंट्रोल अलॉन्ग विद रिकमेंडेड रूल्स एंड रेगुलेशन, 16 तारीख को बात करी जाएगी। 16 तारीख को रात को 12 बजे तक तपस्या मतलब फास्टिंग रहती है। हैव यू एवर थॉट, मॉर्निंग में जब हम जो खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहा गया है, कभी किसी ने सोचा उसको ब्रेकफास्ट क्यों कहा गया है? एनी थॉट्स अबाउट? क्योंकि रात भर सोते हुए फास्टिंग करी है ना, इसलिए उसको ब्रेकफास्ट कहा गया है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप फास्टिंग नहीं करते, हर रात को आप फास्टिंग करते हैं। बस कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन वो एक दिन है जिसमें दिन में भी फास्टिंग करने को कहा गया है, और आपका ब्रेकफास्ट रात को 12 बजे के बाद होगा। ठीक है, वो ब्रेकफास्ट टाइम होगा, मतलब फास्ट ब्रेक का टाइम होगा। सो जो करना चाहते हैं उसके लिए वो सुविधा उपलब्ध रहेगी जन्माष्टमी के दिन। और फिर शांडिल्य मुनि कहते हैं इससे फल क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगेन वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर आवर कॉन्शियसनेस फॉर कृष्ण जन्माष्टमी, दैट्स द होल आइडिया। अगर इस प्रकार से व्यक्ति अपना प्रतिदिन जीवन व्यतीत करता है, उसको निश्चित रूप से उसके हृदय का शुद्धिकरण और उसको उसकी मन चाही कामना उसको प्राप्त होगी। लाइक दैट शांडिल्य मुनि सेज। Anyways, there are more details to it. I'll make this last point. When not engaged in spiritual practices,
one should deliberately focus the mind on auspicious thoughts and avoid inauspicious ones. For the mind is the root of both bondage and liberation. This is again what Krishna says in Bhagavad Gita, 6th chapter, verses 4 and 5. Conquering the mind through effort leads to our success, and neglecting it brings nothing but loss. So, आप सभी के लिए मिशन स्टेटमेंट है, मिशन इम्पॉसिबल. आज से इसका पालन करने का प्रयत्न करिए. 1 महीने का समय है. देखिए 16 अगस्त को कैसा मैजिक होता है. ऑलराइट, लेट्स कम टू अवर स्टोरी लाइन सेलिब्रेटिंग अपीयरेंस ऑफ कृष्ण. भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अहम बीजा प्रथापितः, मैं सबका पिता हूं. अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते. मुझसे ही इस पूरी सृष्टि, चाहे भौतिक हो या अध्यात्म सृष्टि हो, उसका निर्माण हुआ है. और मुझसे ही सबका जन्म हुआ है. जिससे सबका जन्म हुआ है, क्या उसका भी जन्म होता है? ये कैसा भगवान जो खुद जन्म लेता है. अब देखिए, जो भगवान के अवतार हैं बड़े अनोखे होते हैं. खैर, कहने को भगवान मनुष्य के अनुसार भी जन्म लेते हैं. प्रभु राम, वैसे राम जी का साधारण जन्म नहीं था. अग्नि में से एक प्रकट हुए थे देवता, हाथ में एक गोल्डन पॉट लेकर आए थे, और फिर रानियों को दिया गया था वो खीर. उसके बाद राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इत्यादि भरत, उनका जन्म हुआ था. पर कृष्ण के संदर्भ में देखा जाए तो कृष्ण का जन्म एक सामान्य लगता है, परंतु सारे भगवान के जन्म जो हैं सामान्य नहीं होते. इनफैक्ट कृष्ण का जन्म भी सामान्य नहीं है. भगवान जन्म भी लेते हैं, अगर अवतार भी लेते हैं, तो वो भी बड़ा अनोखा होता है. कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं. एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए ऐसी चर्चा कर रहे थे. उनको लगा नाक में मक्खी घुस गई है. जैसे नाक को हिलाया तो नाक में से कुछ निकला, और निकलते निकलते बड़ा हो गया, और पता चला वो थे वराहदेव. तो जाके भूदेवी को कहते हैं गर्भदा कोशन से लेकर आते हैं. इसी प्रकार से हमारे नरसिम्हा देव, उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही हद कर दी थी. खंबे से निकल आए, एक जन्म में तो ब्रह्मा की नाक से निकले, एक में खंबे से निकला है. क्यों? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः. क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने कहा था हिरण्यकशिपु को, हाँ इस खंबे में भी है, तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए. उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म होता है. लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर कई प्रश्न उठाते हैं. अरे अगर भगवान थे, भगवान हैं, तो यार उनको जन्म लेने के कालाग्रह ही मिला. अब सोचिए, एक महान हस्ती आ रही है, राजा आ रहे हैं, संसार के, सृष्टि के राजा आ रहे हैं. And among all that, he found a place, nothing else but nothing better than कालाग्रह, जेल, प्रिजन हाउस. और क्या स्थिति है वहां? उनके माता पिता बंदित हैं. और किस स्थिति में हैं? उनके 6 वरिष्ठ भाइयों की हत्या हो चुकी है. तो कैसे कोई अपने भक्तों की रक्षा करेगा जब कोई अपने परिवार की ही रक्षा नहीं कर सकता. इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न उठाए जाते हैं भगवान के संदर्भ को लेकर. तो सबसे पहली बात, भगवान का जन्म लेने का संक्षिप्त में उस कहानी का उल्लेख करते हैं, आप सब जानते होंगे. तो भगवान जब प्रकट हुए थे तो भगवान वासुदेव के रूप में हुए थे, चतुर्व्यूह विष्णु के रूप में. वह रोते हुए हमारे जैसे साधारण बालक की तरह नहीं निकले थे. वो मुस्कुराते हुए, सुसज्जित कपड़ों के संग, 4 हाथों के संग चमचमाते हुए वो जन्म या प्रकट हुआ था. और उनके उस प्रकट से वसुदेव देव की चिंतित हो गए थे. वसुदेव तो मुस्कुरा रहे थे, देव की चिंतित हो गई थी कि विष्णु प्रकट हो गए हैं. अगर कंस को पता चल गया तो शायद कंस इनके इस रूप को देखकर सही में भयभीत हो जाएगा, इनको नुकसान पहुंचाएगा. तो वो माता देवकी थी जिन्होंने विष्णु से प्रार्थना करी कि कृपा करके आप साधारण मनुष्य का रूप ले लीजिए. और फिर आपको पता है कि कैसे भगवान जब प्रकट हुए 200 फॉर्म में, सो कालाग्रह में अंधेरा छा गया, जेल कीपर सो गए. आपने देखा होगा उस समय का कृष्ण सीरियल, आंधी तूफान आया और तुरंत अचानक वो जेल के दरवाजे खुल गए. एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी कंटिन्यूज, हाउ वासुदेव कैरिड लॉर्ड श्री कृष्णा अप टू गोकुल. इस बारे में श्रील रूप गोस्वामी चर्चा करते हैं. दीज आर द एडिशनल डिटेल्स. ये सब तो एक सामान्य व्यक्ति जानता है, सीरियल में देखा है. सो हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण का एक्चुअल जन्म कहाँ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कालाग्राम में हुआ ही नहीं था। जो कालाग्राम में जन्मे थे वह विष्णु थे। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान श्री कृष्ण के माता पिता का जो रोल है वैसुदेव, यशोदा और यशोदा मैया, नंद बाबा निभाते हैं। तो उनका जन्म यशोदा मैया के माध्यम से ही हुआ था। तो यशोदा मैया से एक पुत्र और एक पुत्री जन्मी थी। पुत्र कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। पुत्री कौन थी? योग माया। और वह वसुदेव लेके आए थे विष्णु को। और जब वह वसुदेव गोकुल पहुंचते हैं, जमुना को पार करने के बाद जहां गोकुल में पहुंचते हैं, तो सब जैसे कालाग्राम में सब सो गए थे, उसी प्रकार से गोकुल में सब सोए हुए थे युग माया की शक्ति के कारण। जब वहां पे पहुंचते हैं तो वह वसुदेव, वासुदेव कृष्ण, जो यशोदा मैया के कृष्ण थे, उसमें समा जाते हैं। और वहां से फिर वह वसुदेव योग माया को लेकर वापस कालाग्रह में आते हैं। रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑल ऑफ यू नो। कालाग्रह में आते हैं, कंसा को पता चलता है। और जैसे ही कंसा को पता चलता है, उस योग माया को जैसे ही वो कंसा हाथ लगाते हैं, वो योग माया महामाया में बदल जाती है, जिसके 8 हाथ थे, जो दुर्गा का रूप, 8 या 12 हाथ, मे बी दीज आर डिटेल्स, 8 or 12 हैंडेड दुर्गा फॉर्म। इस संदर्भ में एक बार हिज ऑनर राधानाथ महाराज बहुत खूबसूरत बात कह रहे थे। वो कह रहे थे, देखिए वसुदेव जिसको लेकर आए थे वो योग माया था, योग माया थी, परंतु कंस ने जिसको छुआ वह महामाया। तो भगवान अवश्य कहते हैं, हिज ऑनर राधानाथ स्वामी महाराज वाज सेइंग, उसी दृष्टिकोण से जब व्यक्ति की चेतना भौतिक होती है तो एक अध्यात्म वस्तु भी भौतिक बन जाती है। जैसे कि भगवान का विग्रह, ये भौतिक पदार्थ का बना हुआ है पर भौतिक नहीं है, क्योंकि हम इसमें भगवान को पूछ रहे हैं, भगवान का रूप है। इसको अर्च विग्रह कहा गया। 5 प्रकार के रूप बताए गए हैं: पर, व्यूह, वैभव, अंतर्यामी एंड अर्च विग्रह। परंतु अगर हमारा भौतिक दृष्टिकोण होगा तो हमें ये मूर्ति के समान नजर आएंगे। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा तो ये हमें स्वयं भगवान के रूप में नजर आएंगे। तो यहाँ कंस का भौतिक दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण होने के कारण वही योग माया उनके लिए दुर्गा का रूप बन जाती है। और जिस दुर्गा का रूप देखकर कंस घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, और वह वासुदेव और देवकी से माफी मांगता है। सो उससे पहले की भी कहानी आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे कंस बड़े उत्साह के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह का आयोजन करता है, परंतु आकाशवाणी होने के कारण वही कंस जो अपनी बहन से इतना प्रेम करता था, वही प्रेम अपनी बहन के प्रति घृणा में बदल जाता है। ये जो कंस है एक भौतिकवादी चेतना को दर्शाता है, मटेरियल कॉन्शियसनेस। इसलिए मैंने शुरुआत में बात करते समय आपके समक्ष शांडिल्य मुनि का वह वचन रखा था कि आप चाहे आध्यात्मिक कृत क्यों ना कर रहे हो, आपका मन अगर भौतिक है, मन में भौतिक विचार है, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसके संदर्भ में प्रश्न उठाया जाता है कि चलो ठीक है, कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण प्रकट हुए, वैसे देखने में तो सामान्य रूप से प्रकट हुए, एक पुरुष और स्त्री के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, परंतु उनके 6 पुत्र, उनके जो 6 देवकी के पुत्र थे, उनका कंस किस प्रकार से हत्या कर पाया, तो उसके बारे में गर्ग संहिता इत्यादि शास्त्रों में उल्लेख आता है। These all things we learn after coming to ISKCON। ये हमें पहले पता नहीं थी, तो जो नए लोग हैं उनको बताने के लिए। Then I'll come to the point of divinity। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है, ये भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब उनको माता देवकी, जब द्वारका में वो रह रहे थे, और कृष्ण से कहती है कि जैसे आप अपने संदीपनी मुनि के पुत्र को वापस लेकर आए थे, हे कृष्ण मैं चाहती हूँ कि आप मेरे 6 पुत्रों को वापस लेकर आए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण सुताल, जो बलि महाराज का राज्य है, वहां पे जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो बलि महाराज को इन 6 पुत्रों के बारे में कहानी सुनाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में ही उल्लेख आता है कि 6 देवकी के पुत्र कौन थे जिनकी मृत्यु हुई थी या जिनको कंस ने मारा था। ये जो 6 पुत्र थे, ये ब्रह्मा के पुत्र मारीच जो मुनि हैं, उनके 6 पुत्र थे, और उनके द्वारा ब्रह्मा के प्रति अपराध हुआ था। जिस अपराध के कारण इन 6 पुत्रों को, इनका जो कि देवता थे, इनका पतन हुआ, और पतन होने के कारण इनको हिरण्यकाशिपु के परिवार में जन्म लेना पड़ा। कहा जाता है एक कि हिरण्यकाशिपु के डायरेक्ट सन थे, और फिर इनका दोबारा जन्म होता है कालनेमी के 6 पुत्रों के रूप में, जो कालनेमी
हिरण्यकाशिपु का ही पुत्र था। तो मैं भागवतम के दृष्टिकोण से देखें तो बताया गया है कि कालनेमि के 6 पुत्र थे और वह ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए जाते हैं और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान लेकर आते हैं। तो जब वापस आते हैं तो उनके दादाजी हिरण्यकाशिपु, जब हिरण्यकाशिपु को पता चलता है कि मेरे ये 6 पोते मुझसे बिना आज्ञा लिए मेरा आश्रय छोड़कर ब्रह्मा जी का आश्रय इन्होंने स्वीकारा, तो हिरण्यकाशिपु बड़ा क्रोधित हो जाता है और वह उन 6 पुत्रों को श्राप देता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए तुमने मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया है। मैं तुम्हें श्राप के रूप में दंड देता हूं कि अगले जन्म में तुम 6 के 6 पुत्र अपने पिता के हाथों मारे जाओगे। तुम्हारा अगला जन्म देवकी के पुत्रों के रूप में होगा और तुम्हारा पिता तुम्हारा मामा के रूप में या देवकी के भाई के रूप में, कंस के रूप में जन्मेगा और उस प्रकार से तुम्हारा मृत्यु होगा। तो इस प्रकार से ये गर्ग संहिता में भी उल्लेख आता है, ये 6 जो पुत्र थे ये श्रापित पुत्र थे। और साथ ही साथ आचार्य के दृष्टिकोण में ये जो 6 पुत्र थे ये 6 दोष दर्शाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। वंस अगेन दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ द माइंड। जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं होगा भगवान का प्रकट नहीं हो सकता, भगवान का आविर्भाव नहीं हो सकता। तो उस प्रकार से जब ये 6 दोष समाप्त हो जाते हैं फिर आते हैं अनंत शेष, अनंत देव, बलराम जी। वो भी अपने में एक अनोखी कहानी है। आज तक कंस को नहीं पता देवकी का 7वां पुत्र कहाँ गया। ये इतनी बड़ी रहस्य की कहानी है जो आप हम तो जानते हैं, पर कंस को अभी भी नहीं पता कि 7वां पुत्र का मृत्यु नहीं हुआ था, मिस कैरेज कहते हैं, राइट, मिस कैरेज नहीं हुआ था, वह गोकुल में ट्रांसफर हो गया था रोहिणी के पास। उस प्रकार से ये कहानी आती है, ये उल्लेख आता है देवकी के 6 पुत्रों का। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बलि महाराज से इन 6 पुत्रों को लेकर आते हैं। लेट्स कम टू दी तत्व पॉइंट। भागवतम में कहा गया है, कुछ श्लोक हैं, विल ट्राई टू रिसाइट अगर विजिबल है तो। जन्म कर्मा च विश्वात्मन् अजस्या कथुरात्मनः वीर्यन्न शिशु यादहसु तद अत्यंत विडंबनम। तो ये माता कुंती के द्वारा कहा गया है, वो भी यही कह रही हैं, हे प्रभु ये बहुत विडंबन की बात है, जो आजन्मा है उस आजन्मा का भी जन्म होता है। सो किसी का जन्म होता है तो जन्म का कारण क्या होता है? ऑफ कोर्स एक दृष्टिकोण है पुरुष और स्त्री का, दे कम टुगेदर एंड दे यूनाइट और उस प्रकार से बच्चा उत्पन्न होता है। पर किसी भी जीव का जब जन्म होता है तो उसका कारण क्या होता है? What is the reason? How does a child takes birth? How does any living entity takes birth in this creation? ऐसा तो है नहीं केवल माँ बाप के साथ में आने से ही बच्चे का जन्म होता है। It doesn't happen like that. It's not that every time, every attempt is successful. So किसी भी जीव का जन्म होता है उसको कौन निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? कर्मण दैव नैत्रेना जंतुर्देह उत्पत्त्यै। किसी भी जीव का जन्म होता है तो वह कर्म और दैव के अनुसार निर्धारित होता है। तो माता कुंती कह रही हैं, प्रभु आप जन्मे हो, जो आजन्मा है उसका जन्म कैसे हो सकता है? और ये सामान्य लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। इसलिए सामान्य लोग कहते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स जो अलग अलग संस्थाएं खोलकर बैठे हुए हैं, हाल ही में मैंने अपनी एक वीडियो पे कमेंट देखा था, बोलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं आचार्य प्रशांत। कोई आचार्य प्रशांत नाम का ढोगी है, राइट? तो मैं पता नहीं मेरी वीडियो के नीचे कमेंट क्यों लिखा था, बोलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं आचार्य प्रशांत। मैंने तो कुछ नहीं बोला था उसके बारे में। देन आई स्टार्टेड पेइंग अटेंशन, हु इज आचार्य प्रशांत। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं परंतु भगवान के अवतार या भगवान के प्रकटने में विश्वास नहीं करते। नंदलेस माता कुंती इस प्रकार से यहाँ उनके जन्मों को लेकर विडंबना प्रकट करती हैं, साथ ही साथ उनके कर्मों को लेकर भी विडंबना प्रकट करी गई है। कहा गया है, कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाशयथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन् रते खिद्यते दुर्विधां ह्या।
खिद्यति धीर विधाम हिया। अच्छे खासे पंडितों की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्यों? कर्माणि अनित्य, हु हैज नथिंग टू डू, फिर भी इस सृष्टि में आके वे कर्म करते हैं। भवो भवस्य थे, जो आज जन्मा है वो प्रकट होता है। दुर्गाश्रयधारी भयात पलायनम कालात्मनो, जिसको कालोस्मी कहा गया है, वह जो काल है, जो सबको भयभीत करता है। अथारी भयात पलायनम, वो दुश्मन के भय से डरकर भाग जाता है। यत प्रमदा अत्यु यत प्रमदा युताश्रमः स्वात्मे रथे, जो आत्माराम है, स्वात्मे रथे, जो अपने में एक प्रकार से आनंद लेता हो, जिसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। यत प्रमदायुत आश्रम, 16,108 रानियों से विवाह करता है। स्वात्म में खिद्यति धीर विधामिया, ये सब तो बहुत बड़े विचलित की बात है। तो प्रश्न बनता है कि भगवान जन्म कैसे लेते हैं? एंड आई एम जस्ट वंडरिंग वेयर इज अ श्लोका, या इज गोना कम। तो भगवान का जन्म लेना, उसको जन्म लेना कहा गया है, उसको आविर्भाव कहा गया है, उसको जयंती कही गई है। क्या है? उसको किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? क्या भगवान का जन्म हमारे जैसे जन्म साधारण नहीं है? अगर साधारण नहीं है तो क्या तथ्य है, क्या प्रूफ है कि भगवान का जन्म दिव्य है? और सबसे पहली बात, इस संदर्भ में भगवद गीता क्या कहता है? वेरी सिंपल श्लोका, इस सबको हम जानते हैं, पर इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। भगवान कहते हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। सो कहा गया है कि कोई अगर मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, एवं यो वेति तत्वतः, इस सच्चाई को जानता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, वह इस जन्म को त्यागने के बाद, इस देह को त्यागने के बाद, नैति मामेति सो अर्जुन, उसका इस भौतिक दुनिया में दोबारा जन्म नहीं होगा। इसके बारे में अलग अलग आचार्यों ने बहुत सारी चीजें कही हैं। आई जस्ट कोट बलदेव विद्याभूषण विच इज रिलेटेड टू अवर कॉन्वर्सेशन। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, देखिए क्या मुक्ति प्राप्त करना इतना आसान होता है? मुक्ति प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, पर मुक्ति प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता है। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सिर्फ आप ये जान लीजिए, मेरे जन्म और मेरे कर्म की दिव्यता को जो समझ जाए, उसको फिर मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। या तो ये कहिए मुक्ति प्राप्त करना आसान है, या तो ये कहिए जन्म कर्म, भगवान के जन्म कर्मों को समझना बहुत मुश्किल है। अगर मुक्ति मुश्किल है तो इसका मतलब भगवान के जन्म और कर्म को समझना मुश्किल है। या तो मुक्ति आसान है, इसका मतलब आसानी से भगवान के जन्म और कर्म को समझ सकते हैं। एंड इट इज नीदर ऑफ इट। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, ये जो मुक्ति है ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है और इसके अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। परंतु भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्ण रूप से मेरे जन्म और मेरे कर्म की लीलाओं के बारे में सुनता है, तो वह निश्चित रूप से उसको मुक्ति प्राप्त होगी। चलो, मुक्ति प्राप्त होगी जो श्रद्धापूर्वक रूप से सुनता है। अब दिव्यम शब्द का अर्थ क्या है? दिव्यता क्या है? तो उसके संदर्भ में हमारे आचार्य बताते हैं, दिव्यता क्या है? जो ये भगवान का जन्म है। अब देखिए, हमारा एक समय में जन्म हुआ और एक समय में हमारी मृत्यु होगी, पर इसमें दिव्यता नहीं है। इस प्रकार से अगर ये कहना कि 5,000 साल पहले भगवान आए थे, तो उसमें दिव्यता क्या रही? तो दिव्यम का मतलब है भगवान का जन्म या भगवान का प्राकट्य हर पल हर समय किसी ना किसी सृष्टि में हो रहा है। Lord can appear simultaneously and do different pastimes simultaneously all together at once. जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है एक जगह, तो दूसरी जगह सूर्यास्त होता है, और जिस जगह सूर्यास्त होता है तो दूसरी जगह सूर्य उदय होता है। हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि सूर्य ओझल हो गया है, पर वह दूसरी जगह पर सूर्य उदय हुआ है। इसको दिव्य कहा गया है। उसी प्रकार से भगवान का प्राकट्य और भगवान का चला जाना
वो एक हमारे भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार हमें दिखाई नहीं देता, परंतु प्रभु एक जगह प्रकट हुए हैं और दूसरी जगह चले गए हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न बनता है, भगवान को प्रकट होने की आवश्यकता क्या है? अगर भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और इस भौतिक जगत को भगवान स्वयं दुखालय में शाश्वत बताते हैं, तो इस भौतिक जगत में भगवान क्यों आते हैं? हमारी लीला में भाग लेने के लिए? हमारी या तो लीला इतनी अच्छी होनी चाहिए, या तो हमारी लीला में भाग लेने के लिए आए, या स्वयं की लीला रचने के लिए और उसको इस प्रकार से आनंदमय बनाने के लिए ताकि जो एक साधारण जीव है उस लीला के प्रति आकर्षित हो। देखिए प्रभु राम को कितना संघर्ष करना पड़ा था रावण को मारने के लिए, हाँ या ना? वानरों की सेना का मदद मांगना पड़ा, सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलवाना पड़ा, उसके बाद वो क्या कहते हैं राम पुल से राम सेतु, पूरा राम सेतु बांधना पड़ा। अब वही प्रभु राम, वही कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, और ईश्वर, व्हाट इज दैट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में मैं विराजमान हूं। देखिए वहां बैठे बैठे परमात्मा अगर हार्ट प्रेशर थोड़ा बढ़ा देते, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते, या एक आध वेल्व को बंद कर देते, रावण हार्ट अटैक से मरता नहीं मरता? परंतु अगर रावण वैसा मर जाता तो फिर सोचिए रामायण या रामलीला के अवसर पे हम कौन सी कथा का उल्लेख करते? हाँ, अंत्य लीला, हार्ट फेलियर लीला। तो हर रामलीला में, हर राम नवमी पे एक ही चर्चा होती, प्रभु ने उसको हार्ट अटैक दे दिया, उसको मार दिया। लीला में कुछ आनंद आता? उसी प्रकार से अब कृष्ण लीला में देखें कितने लंबे समय तक, इनफैक्ट 18 दिन का युद्ध हुआ, और भगवान युद्ध शुरू करने से पहले ही गीता के माध्यम से विराट रूप का दर्शन देकर अर्जुन को दिखा देते हैं कि मैंने सबको मार दिया है। फिर भी कितना सारा ड्रामा हुआ, अभिमन्यु मारा गया, भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, फिर कर्ण मारा गया, क्या क्या नहीं हुआ। Why? Because it leads to adventure। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भगवान के प्रकट होने का कारण जैसे इस 9वें श्लोक से पहले कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युतानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यस, वह धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों का संरक्षण करने के लिए, पर इसके लिए भगवान को स्वयं प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर कहें प्रदेश का, या देश का राजा कहें प्राइम मिनिस्टर, वह लॉ एनफोर्समेंट खुद स्वयं नहीं करते, एजेंसीज होती हैं उसको एनफोर्स करने के लिए। अगर धर्म की स्थापना करनी है, लॉ को एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए यमराज जी ही काफी हैं। परंतु भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भगवान अलग प्रकार की लीलाएं क्यों रचते हैं? ताकि लोगों के हृदय को आकर्षित कर दिया जाए। और उसमें भगवान कुछ ऐसी लीलाएं भी रचते हैं कि एक साधारण व्यक्ति उसको देखकर बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। जैसे कि एक लीला जिसको लेकर बड़ा ही लोगों के मन में संशय रहता है कि अगर भगवान आत्मा राम है, एक नहीं, दो नहीं, 16,108 पत्नियां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता क्या थी? ऐसी भी क्या परेशानी थी? सो दैट्स नॉट माई सब्जेक्ट, बट अगेन जस्ट अ साइड पॉइंट। भगवान गीता में ही कहते हैं ममे वांशो जीव भूता जीव लोका सनातना, सब जीव जंतु मेरे ही अंश हैं, हम सब भगवान के ही अंश हैं। और उन्हीं अंशों के संग भगवान उस 16,108 रानियों के संग विवाह करते हैं। तो भगवान अपने अंशों के संग ही संबंध बनाकर जी रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं भगवान चाहे 16,000 या 16 मिलियन रानियों के संग विवाह करें, भगवान के लिए सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। और तथ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, पुरुष और प्रकृति, भगवान को पुरुष कहा गया है, और जीव हमारे दृष्टिकोण में पुरुष और स्त्री जो भी कहो, पर जीव तो जीव है, आत्मा वो होती प्रकृति है। स्वराज भगवान, और जीव चाहे पुरुष योनि में क्यों ना हो, चाहे स्त्री योनि में क्यों ना हो,
परंतु वो सृष्टि के नियम के अनुसार हमेशा डिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है। अगर कोई इंडिपेंडेंट है उसको स्वराट, उसको भगवान कहा गया है। तो दूसरे दृष्टिकोण से देखें, 13वां अध्याय भगवद गीता के दृष्टिकोण से, पुरुष और प्रकृति हम सब भगवान के अंश हैं। तो चाहे भगवान की रासलीला हो, चाहे भगवान की 16,108 रानियां हो, सब भगवान के अंश माने गए हैं। सो अब बात करते हैं, और मे बी आई विल बी क्विक विद दिस, भगवान के जन्म को लेकर। ये बहुत खूबसूरत भाग है, इसके बारे में शायद मैंने पहले भी चर्चा करी थी, सो आई विल बी इन शॉर्ट ओवर हियर। क्या भगवान के जन्म का कोई समय, या भगवान जब जन्म लेते हैं तो उसके, जैसे हमारे जन्म के लिए कर्म निर्धारित होता है, तो भगवान के जन्म के लिए क्या स्थिति होती है? तो सुखदेव गोस्वामी 10वां स्कंद 3रा अध्याय 1 श्लोक, इसमें 4-5 श्लोक हैं, मैं उन श्लोकों पे नहीं जाऊंगा। आई जस्ट मेक वन, रीड वन श्लोक, एक्सप्लेन वन श्लोका, मैं उसका फिर सारांश आपको बताता हूँ। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। श्री शुकवाच अथ सर्वा गुणोपेतः काला परमशोभनः यर्ह्येवाजन् जन्मरक्षं शन्तरक्ष ग्रहतारकम्। तो बताया गया है, अथा भगवान के जन्म के समय, सर्व गुणोपेतः कालः, उस समय, परम शोभनः, सो उस समय जो काल था बहुत ऑस्पिशियस हो गया था। यर्हि एवाजन जन्मरक्षम, आजन्म अरक्षम, आजना और आजन्म अरक्षम, तो ये अरक्षम का मतलब हुआ कॉन्स्टलेशन, आजन्म अरक्षम का मतलब हुआ रोहिणी। रोहिणी कॉन्स्टलेशन की बात की गई है। तो उस समय नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी नक्षत्र था। आजना जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम, ग्रह उस समय जितने थे वो सब शांत हो गए थे। I was making this point, maybe I'll have that verse over here. Let me quote this. Let me see this. Okay, let me make this 2 challenges, then I'll quote that particular section. So सबसे पहला, क्या भगवान के जन्म के लिए कोई समय निर्धारित होता है? अगर समय निर्धारित है तो भगवान भौतिक नियमों में बंधे हुए हैं। दूसरा, क्या भगवान के जन्म के समय भी, तो आप में से कितने लोगों का क्या कहते हैं ज्योतिष नहीं, कुंडली, कितने लोग की कुंडली बनी हुई है? हाथ खड़ा करो। नक्षत्र पता है सबको? देयर आर 27 नक्षत्र, और वो 27 या 28 नक्षत्र 3 भागों में डिवाइड होते हैं। देव नक्षत्र, मनुष्य नक्षत्र, और तीसरा आसुरिक नक्षत्र। मैं ये नहीं पूछूंगा कौन कौन से आसुरिक नक्षत्र में पैदा हुए हैं, पर आपके कुंडली में लिखा होगा कौन कौन कैसे कैसे पैदा हुआ है। यस और नो, इतना पता है? तो ये जो नक्षत्र आपके जन्म के समय का होता है, नक्षत्र का मतलब क्या होता है? नक्ष तारा। तो इस मैप ऑफ स्टार्स, जिसको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, और जन्म के समय जो नक्षत्र होता है वह निर्धारित करता है, ऐसा सिटिंग प्लेस ऑफ अवर कर्मा। उसी कुंडली के अनुसार जो एक ज्योतिष होता है, जिसको इसका ज्ञान होता है, जैसे कि लेट मी रीड दिस, इज इट विजिबल? ये पहले स्कंद का है, परीक्षित महाराज के जन्म के समय का उल्लेख है, और प्रभुपाद जी इसमें कुछ बात कह रहे हैं। द मोस्ट ऑस्पिशियस कॉन्स्टलेशन, विच मीन्स नक्षत्र, takes place during the appearance of the Lord in the material world. So जो सबसे शुभ नक्षत्र होता है वह भगवान के जन्म के समय होता है, और इसको स्पेसिफिकली कहा जाता है जयंती। महात्मा गांधी जयंती गलत है, उसमें कुछ भी शुभ नहीं था। वो एक कर्म फल से जन्मा व्यक्ति था। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, काट लेना, हाँ, फिर कोई और कमेंट आ जाएगा। ये मैं आप लोग के नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जयंती इज अ वर्ड ओनली यूज फॉर द अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड, अ वर्ड नॉट टू बी अब्यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। महाराज परीक्षित वाज नॉट ओनली अ ग्रेट क्षत्रिय एम्परर बट आल्सो अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो जिस श्लोक का तात्पर्य है उसमें बताया गया है, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था उस समय बहुत शुभ स्थिति थी, कॉन्स्टलेशन नक्षत्र का बहुत शुभ समय था। As a proper place and time is selected to receive a respectable personage, so also to receive such a personality. तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जब हम किसी को घर में बुलाते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, उस प्रकार से हम सब कुछ ऑस्पिशियस बनाते हैं।
उसी प्रकार से जब भगवान का जन्म होना होता है तो जो प्रकृति है अपने आप पूर्णतः ऑस्पिशियस हो जाती है. इट बिकम्स द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम. जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं या जिनको इनका थोड़ा सा ज्ञान होगा, तो भगवान के राम के समय क्या नक्षत्र था, भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों के समय जो नक्षत्र था वो एक ही नक्षत्र था, उसको रोहिणी नक्षत्र कहा जाता है. उस प्रकार से वो लेकर आता. तो प्रभुपाद जी स्पीकिंग अबाउट दिस थिंग. तो कहने का तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं जिस प्रकार से अगर कोई महान व्यक्ति हमारे घर आता है तो उसको हम वेलकम करने के लिए वी क्रिएट दैट ऑस्पिशियसनेस, उसी प्रकार से जब भगवान इस सृष्टि में प्रकट होते हैं सच काइंड ऑफ ऑस्पिशियस सिचुएशन इज क्रिएटेड. इस संदर्भ में मैं भी हाल ही में क्लास में एक बात बता रहा था. आई वॉज मे बी ऑफ फर्स्ट ग्रेड और मे बी यंगर देन दैट. ये कन्नौज की बात है. हम लोग मैं छत पे खड़ा हुआ था, रात का समय था, and suddenly I saw shooting stars. I very vividly remember. कम से कम 8-10 तारे टूटते हुए देखे थे मैंने कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर. It was just like shooting star. Anyone have seen shooting star? किसी को shooting star का मतलब पता है क्या होता है? What does it mean that there is a shooting star? हाँ, okay, demigods are falling. What else? Shooting star is a sign of inauspiciousness. So I remember I was up on the terrace and I saw some shooting stars here, some shooting stars here. Then I asked my mother, उस समय वो भी छत पे थी, तो उस समय माँ कहती है, and this was something which was known to people in those days, maybe शायद अब पता हो ना पता हो, and my mother told me, very interesting, she said, because there have been so many shooting stars, it means some very great personality must have died. एक बहुत महान हस्ती का निधन हुआ होगा जिसके कारणवश these are the omens. ये these are the evidence, some great personality, which means एक महान हस्ती का निधन होना मतलब an inauspicious time have descended. किसी great personality के जाने से अब अधर्म बढ़ेगा उस प्रकार से. And you would not believe, you know, this is Kannauj, a town in UP. हम लोगों का ही घर था जो 3 story या 2 story था, तो we are on the tallest tower, I'm on the terrace. उसी कुछ 5-6 मिनट के बाद सामने फ्यू लेन्स अहेड वहां से लोगों की रोने की आवाज आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वहां लोगों का बढ़ना शुरू हो जाता है. एंड आफ्टर सम टाइम आई गॉट टू नो फ्रॉम माई पेरेंट्स, कन्नौज में उस समय एक बहुत महान संत बाबा रहा करते थे. वेरी वेरी फेमस गुरु और स्पिरिचुअल टीचर वाज देयर. जिस समय मैं ये शूटिंग स्टार्स देख रहा था, तकरीबन उसी समय की बात है, उस महान हस्ती का निधन हुआ था. दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. और इसको कहा जाता है साइंस ऑफ ओमेंस. तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो भगवान श्री कृष्ण को 34 ज्ञान कलाएं जो सिखाई गई थी या गुरुकुल में जो पहले सिखाया जाता था ज्ञान, उसमें से एक कला होती थी साइंस ऑफ ओमन. प्रकृति के अलग अलग जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे, जो चीजों को देखकर कैसे समझा जाए कि आने वाला समय अच्छा है या बुरा है, उस प्रकार से. एनीवेज दैट्स अ होल आइडिया अबाउट नक्षत्र. तो इस बारे में श्रीमद् भागवतम के श्लोक में कहा गया है कि जब भगवान का प्रकट होने का समय आया तो उस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र था जिसका नाम तो रोहिणी, और जो भी प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस थे वो सब शांत हो चुके थे या सब स्ट्रांग पोजीशन में थे. लाइक दैट दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड. द कॉन्स्टेलेशन रोहिणी अपीयर्ड एज द स्टार्स लाइक अश्विनी, द सन, मून, अदर स्टार्स, दे ऑल बिकेम पीसफुल. संक्षिप्त में एस्ट्रोलॉजी के बारे में, नॉट टू मच बट लिटिल बिट. नक्षत्र में आपको बता ही चुका हूं 27 प्रकार के होते हैं. देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण. राक्षसगण का मतलब इज नॉट लाइक असुरिक. देवगण का मतलब होता है कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड. मनुष्य गण का मतलब होता है इज अ रेगुलर कंडीशन लिविंग एंटिटी. और आसुरिक गण का होता है अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड. और ये आप व्यक्ति के स्वभाव हाव भाव को देखकर समझ सकते हैं. दिस आर द वेज वी कैन अंडरस्टैंड कौन किस प्रकार के गुण से आया है. दो द डिटेल्स. नाउ भगवान का जब जन्म हुआ था वो कौन सा दिन था? अष्टमी. और महीने में 2 अष्टमी आती हैं. एक होती है कृष्णा अष्टमी और दूसरी होती है, so let's take a look. There are 2 ashtamis. One is called शुक्ल पक्ष अष्टमी. शुक्ल पक्ष अष्टमी वो होती है जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस कॉल ऑफ वैक्सिंग. और दूसरी अष्टमी होती है कृष्ण पक्ष अष्टमी, जब चंद्र धीरे धीरे ढक रहा होता है, वेनिंग होता है.
एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कुछ भी अगर आपको कार्य करना है वो हमेशा जब चंद्रमा बढ़ रहा है उन 15 दिनों में करा जाता है। जैसे कि शादी का मुहूर्त, जिनकी शादी हो रही है एस्ट्रोलॉजर से पूछना, वो बताएगा क्यों उसने ये तारीख चेंज करी है। इट्स जस्ट बिकॉज आपका उस समय मून की पोजीशन क्या है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, भगवान का अवतार या भगवान प्रकट हुए जहां मून वॉज नॉट इन ऑस्पिशियस सिचुएशन, इट वॉज इन ऑस्पिशियस पोजिशन। सो द मून वॉज इन कॉन्ट्रडिक्टरी पोजिशन, परंतु उस समय सिचुएशन थी मून वॉज सपोज टू श्रिंक। पर जैसे ही भगवान का जन्म होता है इट वॉज अ फुल मून नाइट, एंड लाइक दैट सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन्स द कॉन्ट्रडिक्शन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एट दिस टाइम ऑल्सो अदर नक्षत्र सच एज अश्विनी प्लैनेट, ऐसा ये मैं बता ही चुका हूं, जीव गोस्वामी बताते हैं इस बारे में। सो इट वॉज अ फुल मून नाइट। ऑल राइट, मौसम कौन सा था? स्प्रिंग सीजन था जब भगवान का जन्म हुआ था, या मॉनसून सीजन था? मॉनसून ऋतु का समय था। ऋतु के समय में, और समय क्या था भगवान के जन्म का? रात को 12 बजे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, रात को 12 बजे इट्स नॉट एन ऑस्पिशियस टाइम, फ्रॉम फ्रॉम ऑल मीन्स इट्स एन इनऑस्पिशियस टाइम। रात को 12 बजे केवल एक ही जीवित रहता है, मतलब एक ही जीवित जागता है, हिंजेवाड़ी के आईटी क्राउड को छोड़कर। कौन सा जीव है जो रात को 12 बजे जागता है? उसको नाम से ही उल्लू कहा गया है। कैन यू इमेजिन? अदरवाइज नोबडी स्टेज अवेक। भगवान को कोई और समय नहीं मिला। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर एक सामान्य दृष्टिकोण से देखेंगे, नीदर इट वॉज अ वेक्सिंग टाइम, इट वॉज अ वेनिंग टाइम। तो जो मून की स्थिति थी वो भी ठीक नहीं थी, समय भी ठीक नहीं था, रात का अंधेरा था, एवरीथिंग वॉज इनऑस्पिशियस। परंतु जब भगवान के प्रकट का समय हुआ, somehow everything changed। उस प्रकार से श्लोक श्रृंखला बताती हैं। I'll just quickly run through with that। क्या बताया गया था? These are, I'm skipping this। तो क्या स्थिति थी? So I have a translation, I have a translation। Oh, I don't have a translation। Okay, तो बताया गया है दिशा प्रसेदो गगनम। तो सब दिशाएं जो थी वो एकदम से बहुत ऑस्पिशियस हो गई थी। निर्मलोदो गणोदयम, जो निर्मल, इन विच ऑल द ऑस्पिशियस स्टार वर विजिबल। तो इतना अच्छा वातावरण हो चुका था कि सारे चांद तारे बिल्कुल नजर आ रहे थे। बारिश के मौसम में नजर आते हैं, तो दैट्स द फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन। बारिश का मौसम था, बादल थे, परंतु सब कुछ हट चुका था, एंड ऑल द स्टार्स एंड द मून वर क्लियरली विजिबल। मही मंगला भूइष्ठा, और बताया गया मही मतलब भूमि, मतलब अर्थ, मंगला भूइष्ठ पूरा ग्राम व्रजाकार, और जो पूरी धरती थी वो पावन भूमि हो गई थी। उस समय कंस का राज्य था, जिसके कारण ना ही तो यज्ञ होता था, ना कोई धार्मिक काम होता था। तो हम जानते हैं उस समय ना ही तो लोगों की अच्छी स्थिति थी, ना समाज की अच्छी स्थिति थी। Even the situation when Krishna took birth, it was very inauspicious because Kamsa was ruling। परंतु भगवान के आते ही पूरी भूदेवी उस प्रकार से मंगल हो जाती है। नदी की क्या स्थिति थी? नद्य प्रसन्न सलीला। देखिए, जब बारिश होता है, बारिश का मौसम होता है, तो नदी का पानी साफ नहीं होता, नदी का पानी गंदा होता है, क्योंकि उस समय बारिश के कारण पहाड़ी से सारी मिट्टी आकर नदी में बहती है। पर उस समय नदी की हालत कैसी थी? नदी प्रसन्न सलीला, सारी नदी जो थी पूर्णतः शुद्ध हो गई थी। हृदय जलरूह श्रीहा, और जो बड़े बड़े पानी के जो रिजर्वियर्स थे, दे ऑल बिकेम ब्यूटिफुल। जलरूह श्रीहा, और उसके अंदर कमल खिल रहे थे। कमल किस समय खिलता है? जब सूर्य उदय होता है, नॉट एट द टाइम ऑफ सनसेट। और भगवान के जन्म के समय there were lotuses which were blossoming in the lakes, in the rivers, in the reservoirs। जो बारिश के पानी के कारण जो दूषित होना था, सब उस समय निर्मल था। द्विजाली कूल सन्नाद स्तव कहा, और अलग अलग बर्ड्स, कुकू बर्ड्स, स्वीट सिंगिंग बर्ड्स, दे वर सिंगिंग। रात को कोई बर्ड नहीं गाती है, केवल एक ही है, एक उल्लू और दूसरा बेताल। उन्हें बेताल नहीं, क्या कहते हैं, चमगादड़ कहते हैं, बैट। यू अंडरस्टैंड? आपने कभी उनकी आवाज सुनी है?
सांगरिया में आइएगा, वहां रात को बहुत आवाज सुनाई देती है, सही में रोने जैसी आवाज आती है। सांगरिया में तो कुत्ते भी बहुत है खैर, और कुत्तों के रोने की आवाज भी सुनाई देगी। सो वेरी इंटरेस्टिंग, रात को ना ही कोई चिड़िया होती है, नॉट ओनली चिड़िया, इट सेज देयर वर बम्बल बीज, bees were buzzing in the middle of the night. Now bees, for bees to buzz, there has to be flower must be blossoming. इसका मतलब उस रात के समय फूल खिले हुए थे, जिसको देखकर bees were buzzing and all the birds were chirping and making beautiful sounds. तो पानी निर्मल हो चुका था, flowers were blossoming, bees were buzzing, और वो मॉनसून का सीजन था। मॉनसून या बारिश के मौसम में जो हवा होती है बहुत तेज होती है, आंधी तूफान का समय होता है, परंतु 12 बजे उस समय क्या स्थिति थी? देयर वॉज अ जेंटल ब्रीज। सुखदेव गोस्वामी सेज ऑल्सो वह ऋतु का सीजन था, परंतु उस समय वातावरण स्प्रिंग का हो चुका था। वह सब फूल उगाए थे जो उस ऋतु के भी नहीं थे। तो हमने याद शुरुआत में कॉन्ट्राडिक्शन की बात करी थी। तो जब भगवान का जन्म होना था या जन्म हुआ, जो जो कभी हो नहीं सकता था, नेचर वो सब कर बैठी। माया अध्यक्षेना प्रकृति सुएते सा चराचरम, क्योंकि भगवान के अधीन है और भगवान के स्वागत करने के लिए, हमारे स्वागत के लिए कुछ नहीं बदलने वाला, ना कोई बदला था। एंड दिस इज अनदर रीजन। उसी प्रकार से भगवान भगवद गीता में कहते हैं संभवामी आत्मा माया, मेरा जन्म मेरी अपनी इच्छा के अनुसार होता है। एंड लाइक दैट देयर आर मेनी अदर एविडेंसेस व्हिच प्रूव्स भगवान का जो जन्म है, जन्म कर्मा च मे दिव्यम। उस प्रकार से यहाँ हवा इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है, उस बारे से बताया गया है। एंड आखिरी चीज, ब्राह्मणों के संग उस समय बहुत शोषण था, कंस ने बहुत आतंक फैला रखा था, परंतु उस समय जब भगवान का प्रकट्य हुआ, all the brahmanas, they felt a sense of peace, they became very confident and they again ignited their fire of yajna। उस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करते हैं, जो कि बहुत इनऑस्पिशियस मोमेंट था भगवान के प्रकट लेने से या अवतार लेने से, वह सारा इनऑस्पिशियसनेस ऑस्पिशियसनेस में बदल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है। ये कोई साधारण जन्म नहीं है एक जीव का, ये भगवान का जन्म है। और जिस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद ने बताया शुरुआत में, अगर हम किसी बहुत वीआईपी गेस्ट को निमंत्रित देते हैं या बुलाते हैं, तो वी क्लीन आवर हाउस, वी मेक इट ऑस्पिशियस। उसी प्रकार से भगवान का स्वागत करने के लिए इस प्रकृति में हर प्रकार का फेरबदल हुआ। जो उस समय होना भी नहीं था, उस समय सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस और कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हुई। और ये श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के माध्यम से प्रकट करता है, जो भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जो जन्म है वह दिव्य है, वो एक साधारण जीव के अनुसार नहीं है। और इस सब चीज को समझने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। बिना शास्त्र अध्ययन करे केवल महाभारत और कृष्णा सीरियल टीवी पे देखकर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, बिकॉज दे विल नॉट शो ऑल दिस थिंग्स, दे विल शो व्हाट एंटरटेन्स पीपल। पर भगवान की दिव्यता समझने के लिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। सो विद दैट आई विल पॉज हियर वंस अगेन। भगवान का जन्म एक साधारण मनुष्य के समान नहीं है। भगवान जब कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, तो भगवान के जन्म के समय पूरी प्रकृति भगवान का स्वागत करने के लिए उस प्रकार से स्थिति पैदा करती है। रात को लोटसेस ब्लॉसम करने लगते हैं, बारिश के मौसम में स्प्रिंग की जेंटल ब्रीज ब्लो करने लगती है, और रोहिणी नक्षत्र सबसे ऑस्पिशियस नक्षत्र में भगवान प्रकट होते हैं। उस प्रकार से भगवान का प्रकट्य बताया गया है। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान प्रकट इसलिए होते हैं ताकि भगवान अपनी लीला रच सकें, और ताकि लीला के माध्यम से हमारे हृदय को अपने प्रति आकर्षित कर सकें। हमारा हृदय तब आकर्षित होगा जब हम भगवान की लीलाओं को सुनने का प्रयत्न करेंगे। सो वंस अगेन, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, this whole series have been started with an idea to prepare our consciousness for Janmashtami। अगर हो सके कृपा करके श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई कृष्णा बुक, उसका अध्ययन करना शुरू करिए। I can promise you
अगर हम सब अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं 16 अगस्त के दिन भगवान को वेलकम करने का, भगवान का स्वागत करने का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव बचामि हम। भगवान स्वयं कहते हैं कि जैसा व्यक्ति मेरे प्रति सेवा करने का प्रयत्न करता है मैं उसी प्रकार उसके लिए प्रतिक्रिया देता हूं। अगर हम सच्चे मन से, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हम लोग जन्माष्टमी का समारोह तो बहुत जोश से मचा बनाते हैं। भारत में एक नियम रहा है, जन्माष्टमी के दिन झांकियां लगती हैं मंदिर में और लोग एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाते हैं, परंतु कोई परिवर्तन, कोई उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैंने शांडिल्य मुनि के द्वारा वो कहानी प्रकट करी थी कि कैसे उन दो भाइयों में से एक भाई मंदिर में था परंतु उसको यमलोक प्राप्त हुआ। क्यों? वह था तो मंदिर में पर उसका मन कहीं और लगा हुआ था। परंतु दूसरा भाई जो मंदिर में भी नहीं था, जो एक वैश्या के घर पे था, परंतु उसका मन भगवान का स्मरण कर रहा था, तो उसको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से हम अपने रोजी रोटी और काम धंधे में लगे हुए हैं, उसी बीच में अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करके भगवान का स्मरण पैदा कर सकें, तो आने वाले जन्माष्टमी के दिन जिस प्रकार से शांडिल्य मुनि ने कहा कि सब मनोकामना पूर्ण हो सकती है अगर हमारा मन भगवान में लगे, तो उस सोच के अनुसार हमने ये सीरीज स्टार्ट करी और इस सीरीज में आज हमने सबसे पहले विषय चर्चा करा, क्या भगवान का जन्म साधारण है, क्या भगवान मनुष्य के समान है। जब तक ये विषय क्लियर नहीं होगा तो भगवान की लीलाओं पर हमारी श्रद्धा नहीं होगी, और उन श्रद्धा और लीलाओं को हम एक सामान्य दृष्टिकोण से देखेंगे या काम वासना के रूप से देखेंगे। सो भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान के कर्म दिव्य हैं, और उसको समझने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के माध्यम से या शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तो उससे हम भगवान को समझ सकते हैं और फिर इस जन्माष्टमी जैसे पावन अवसर का हम फायदा उठाकर भगवान के संग अपना प्रेममय संबंध एक बार फिर जोड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा शांडिल्य मुनि के द्वारा बताई कहानी। हो सकता है जन्माष्टमी के दिन आपके अंदर काफी उत्साह रहे, परंतु अगर मन सही जगह नहीं है उसका कुछ फायदा नहीं होगा। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम टुडे। प्लीज स्टार्ट रीडिंग कृष्णा बुक and possible please chant the holy names of the Lord and wait for the magic to unfold on the day of Janmashtami. Shri Radha Krishna ki, Shri Radha Vrindavan Chandra Deva ki, Shri Gaur Nitai ki, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Go Premanande.